Time and place for performance of promise is very simple. I'll just send you a chart for this one, so you can just refer to that chart. Time for performance जो इधर रहेगा, sorry, you have your chart, you have the chart book ना? हाँ, अगर टाइम नहीं बताया तो बिजनेस आवर्स में देना। Correct, correct. So एंड basically, you have to do it during the business hours. You have to go within a reasonable time, and you have to uh, perform at the place which is decided or at any reasonable place. That is the section. हम्म। Then coming to the next part, यहाँ पे है नो एप्लीकेशन मेड. सो ये चार्ट से ही खाली देखना है. नो एप्लीकेशन मेड, नो टाइम स्पेसिफाइड. तो परफॉर्मेंस टू बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम. Time is specified, no application made. So on a certain day during usual hours on such day at the place where promise ought to be performed. On a certain day at proper time and place. अगर time and place दोनों दिया है तो तभी जाके perform करना है. नो एप्लीकेशन टू बी मेड, नो प्लेस फिक्स. तो जब भी रीजनेबल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है वहां पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं. इन द मैनर और टाइम प्रिस्क्राइब. सब कुछ पहले से डिसाइडेड है तो वो पर्टिकुलर वे में यू हैव टू परफॉर्म. ठीक है, इट इज नॉट वेरी रेलिवेंट, बस ये एक चार्ट देख के जाना है, दैट्स इट. देन reciprocal promise. This is important. What is reciprocal promise? यू टीच मी आई विल पे यू, सो दैट्स रेसिप्रोकल करेक्ट. प्रॉमिस। तो अगर मैंने बोला है कि आई एम गोइंग टू टीच यू, यू हैव सेड यू विल पे मी. सो व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू इज अ प्रॉमिस. Reciprocal promise is that you will pay me. That is a reciprocal promise. So he is saying that promiser not bound to perform unless reciprocal promise ready and willing to perform. So if I am not teaching you, then you are not supposed to pay me. Very logical. The section is very logical, but the words are technical. तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस और उसका कैसा विलिंगनेस होना चाहिए, रेडीनेस होना चाहिए, कब होगा, जब भी सामने वाले ने परफॉर्म किया उसके बाद यू विल हैव टू पे. तो वो जो उसका वर्डिंग्स है वो खाली टेक्निकल है, बाकी इट इज लॉजिकल ओनली कि ऐसा ही होता है. अगर किसी ने काम नहीं किया तो पैसा अपन उसको नहीं देंगे. करेक्ट. टुडे इफ आई एम कॉलिंग एन इलेक्ट्रिशियन, if he is not coming, he is not working, then I'm not going to pay him. I'm not bound to pay him. That is very logical. Then order of performance of reciprocal promise. Order क्या होता है? Either it is fixed कि पहले मैं ऐसा करूंगी. So I told you that first you will pay the fees, then I will teach you. So that was the order that was decided between the two of us. So अगर order पहले से fixed है कि ये करना है, जैसे अगर एशियन पेंट्स को मैं बोलूंगी आके पेंट करके जा, so what he will say, first give me advance, then I will paint, then you pay the balance. Correct. This is the order. Now this is the order which is discussed between the parties and this is how it will be performed. So जहाँ पे order fixed है, you will have to perform in that particular manner. Where it is not fixed, then you have to perform it in a reasonable way. तो जो भी reasonable way है उसमें अपने को perform करना है. Then liability of party preventing event at which the contract is to take effect. Now if it is similar to your offer to perform. Correct. So if I have told you that I'll teach you, you will have to pay me. Now I am coming and logging in at 4 o'clock every day because that is the time decided. But you don't join the meeting at all. So in this case, what will happen is that my liability is done because I have offered to perform. तो जो ऑफर टू परफॉर्म पढ़ा था वही सेम है, बट इट इज जस्ट पुटिंग अ सेक्शन सेइंग दैट लायबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड. तो लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड जो वहां पे पढ़ते थे इज जस्ट कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर section. Then effect of default as to what promise which should be first performed in contract, as to that promise which should be first performed in the contract consisting of reciprocal promise. तो अगर decided है that we will have to perform in this way, if I've told Asian Paints I'll give you 1 lakh rupee ka advance, you paint the house, balance 3 lakhs I'll give you later on. So this order is there. Now if I don't pay the advance, तो जो सेकंड है सब्सिक्वेंट प्रॉमिस है, नहीं इसको होगा। परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. और आई हैव पेड द एडवांस, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज पेंटिंग वर्क, आता ही नहीं है, एक दिन आके चला गया, बाकी का रूम ऐसा ही पड़ा है, देन आई एम नॉट सपोज टू पे द बैलेंस. तो जो मेरा प्रीवियस प्रॉमिस है जिसका फर्स्ट परफॉर्मेंस है, ही हैज टू फर्स्ट परफॉर्म, देन आई विल बी लायबल टू परफॉर्म. ठीक है. तो अभी तक क्या क्या देखा अपन ने? एक है रेसिप्रोकल प्रॉमिस. तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में दोनों को परफॉर्म करना है.
ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इधर इट इज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज और वट एवर इज द रीजनेबल ऑर्डर उसके हिसाब से परफॉर्म करना है। थर्ड क्या बोलता है, लाइबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिंग इवेंट, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट, मतलब मैं ऑफर कर रही हूँ लेकिन यू आर प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस, तो देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। थर्ड बोलता है कि जहां पे परफॉर्मेंस का ऑर्डर फिक्स्ड है और किसी को फर्स्ट परफॉर्म करना है, उसने फर्स्ट परफॉर्म नहीं किया है, तो उसके बाद वाला जो इंसान है उसको परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा और उसके लिए ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल। देन कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर टाइम इज एसेंशियल, हाउ इज योर हेल्थ बाय द वे? इट्स गुड, बट पता नहीं क्यों सर्दी और खांसी है बहुत। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर फॉलिंग सिक नाउअडेज, या तो या पता नहीं, एक दिन अचानक से आई वोक अप एंड देन आई हैड सो मच, ऐसा सर्दी हो गया था एंड देन दोपहर तक मुझे फीवर आ गया था, ये 2 दिन हाँ, चला वो। yeah, I know a lot of people are sick. I know a lot of them falling sick. So yeah, ठीक है. Now, failure to perform at a time fixed in the contract in which time is essential. So there are certain contracts जहाँ पे time essential होता है, अपन ने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, जैसे मेरा गोल्ड है, सिल्वर है, शेयर्स है, ये सब में मेरा टाइम essential है, तो वो टाइम पे इमीडिएट होना चाहिए, बिकॉज वहां पे मेरा टाइम इज ऑफ एसेंस। गोल्ड का भाव टुडे एंड टुमारो विल बी डिफरेंट, शेयर्स का भाव टुडे एंड टुमारो विल बी डिफरेंट, सिल्वर द रेट कीप्स चेंजिंग. So here where time is of essence, you have to perform it at that point of time only, and you cannot perform it later. You can perform it later only if the other party is also agreeing. Correct? So say for example, I go to buy jewelry and I tell the jeweler, मैं उसको बहुत साल से जानती हूँ, मेरी मम्मी, मेरे दादा, मेरे परदादा, everyone used to take jewelry from him only. So I know him since a long time. So if I am buying some jewelry and I tell him that I am paying you an advance of 5,000, jewelry is say for example 10 lakhs. I tell him I will pay this to you tomorrow. टुमारो द रेट विल चेंज बट ही विल फिक्स द रेट फॉर मी, कि आज का जो भी रेट है वो कल कम भी हुआ है तो भी मुझे 10 लाख ही पे करना है, ये नहीं भी पे करूं एंड पार्टीज अग्री दैट वी आई कैन पे द अमाउंट टुमारो टू हिम, देन दैट इज ऑल्सो ओके. अंडरस्टूड? यस। नाउ, now, effect of such failure when time is not essential. If it was not the intention of the parties that time should be of essence, then the contract does not become voidable. Time अगर essence का नहीं है, गाड़ी जो है मैं आज लूं या कल लूं, price will remain the same, correct? So if I am unable to come today to pick up the car, I come tomorrow, the price remains the same, correct? Now, then second is effect of acceptance of performance at a time other than agreed upon. If in case the contract of a contract voidable on account of promiser's failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accepts performance of such promise at any time other than agreed, the promisee कैन नॉट क्लेम कॉम्पेंसेशन. तो ये वाले एग्जाम्पल में जो मैंने अभी दिखाया, इसमें यहाँ पे ही कैन नॉट क्लेम कॉम्पेंसेशन बिकॉज ही इज अग्रीड टू डू दैट थिंग, तो वो अग्री कर सकते हैं. कैन नॉट बी अवॉइडेड व्हेन टाइम इज नॉट असेंशियल एंड इम्पॉसिबल एक्ट तो अपने को पता है पहले से कि ये वॉइड हो जाता है. कॉन्ट्रैक्ट टू डू आफ्टर बिकमिंग आफ्टर एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल, तो ये अपना इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी किसके साथ मैच होता है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नहीं. नहीं। क्या होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, क्या है पहले से ही पता है पहले मुझे, इनिशियल. हाँ, तो दैट्स वॉइड, सब्सिक्वेंट मतलब वॉइड एब बाद में पता इनिशियो। चला. ओ करेक्ट. वैलिड दिस टर्न वॉइड, हाँ वैसे, करेक्ट, सॉरी। दिस इज void ab initio and this is valid turn void, सेम कॉन्सेप्ट है, खाली उसको नाम डिफरेंट दिया है. एंड वो लोग कभी ऐसा नहीं पूछेंगे वैलिड टर्न वॉइड एंड वॉइड ab initio, दे विल ऑलवेज आस्क इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. तो यू शुड नो दैट इट इज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो अपन ने पढ़ा था और चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस. Correct? So it is the same thing, no change at all, but this is something which is frequently asked. ठीक है? हम्म।
तो ये बहुत बार पूछा है, and I don't know for some reason, no, like even like for my papers, when I ask this particular question, most of the students are unable to answer it. There is no logic. अगर मैं पूछूंगी void ab initio valid turned void, everyone will know कि क्या है, लेकिन जब मैं वही सेम को वर्ड चेंज करके इनिशियल सब्सिक्वेंट पूछूंगी तो नहीं होता है. ठीक है. सो दिस इज सेम इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, उसको सुपरवीनिंग भी बोलते हैं. सो रिमेम्बर सुपरवीनिंग ऑल्सो. हाईलाइट करके रखना. देन ये परफॉर्मेंस इन पार्ट्स सेम है, ये अपन ने किया है. ये वाले चैप्टर में बहुत सारा चीज है जो रिपीट हो रहा है. परफॉर्मेंस इन पार्ट्स की है, जहाँ पे एक पार्ट लॉफुल है दूसरा पार्ट अनलॉफुल है. हाँ. कैन वी ब्रेक इट? इफ वी कैन ब्रेक इट देन वी विल डू द लॉफुल पार्ट, नॉट डू द अनलॉफुल पार्ट. इफ वी कांट ब्रेक इट देन द एंटायर थिंग इज अनलॉफुल. इट इज द सेम थिंग. Reciprocal promise to do certain things that are legal and also some other things that are illegal. हाँ, तो you can write down, don't write what I have written, just write down lawful in parts, जो उधर थर्ड में किया था ना अपन ने, सेम. ठीक है. सो व्हाट आर वी डूइंग हियर? फर्स्ट अपन ने बोला है रेसिप्रोकल प्रॉमिस अगर नहीं किया है तो मुझे परफॉर्म नहीं करना है. ऑर्डर ऑफ प्रॉमिस जो पार्टीज ने डिसाइड किया है उसके हिसाब से करना है, या फिर जो रीजनेबल वे होता है उसके अंदर अपन करेंगे. थर्ड अपन ने बोला है कि अगर कोई परफॉर्म करना चाहता है, सामने वाला प्रिवेंट कर रहा है, तो हुएवर इज ऑफरिंग टू परफॉर्म इज नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल. फोर्थ बोलता है कि अगर परफॉर्मेंस का सीक्वेंस डिसाइडेड है तो जिसका फर्स्ट परफॉर्मेंस है उसको करना है, अगर वो नहीं करता है तो सब्सिक्वेंट पार्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. देन अगर टाइम एसेंस का है तो टाइम के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, voidable हो जाता है. Otherwise, there is an option where parties decide that you can have it at another time and then that is something which is okay. थर्ड बोलता है उसमें कि अगर टाइम इज नॉट ऑफ एसेंस एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो वो वॉइडेबल नहीं हो सकता है बिकॉज टाइम इज नॉट ऑफ एसेंस. करेक्ट. अगर वो इम्पॉसिबल एक्ट के लिए है तो वो ऑलरेडी अपने को पता है कि वॉइड ही है. अगर वो अनलॉफुल या लॉफुल अनलॉफुल साथ में कॉन्ट्रैक्ट है एंड इट कैन बी ब्रोकन, तो ब्रेक करके जो लॉफुल पार्ट है उसको परफॉर्म करेंगे, अनलॉफुल को नहीं परफॉर्म करेंगे. अगर ब्रेक नहीं होता है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करेंगे. देन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर इनिशियली गुड, later on become void. Initial impossible, sorry, subsequent impossibility, क्योंकि वो void हो जाते हैं due to change in circumstances, change in law. या फिर स्टार्टिंग से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है तो वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगा. करेक्ट. Yes. ठीक है ना. आगे जाएंगे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स. अगेन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स इज इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं. इनिशियल सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे अपने केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं. सो यहाँ पे क्या बोलता है कि एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, 59 बोलता है. 60 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, सेक्शन 60 बोलता है. ठीक है. एंड थर्ड बोलता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स. करेक्ट. सो व्हेन आई एम पेइंग, मेरे पास 3 इनवॉइस है, 3 नहीं ज्यादा रखते, 10,000, 5,000, 15,000, 5,000, 5,000. ठीक है. सो आई हैव दीज इनवॉइसेस विच आर पेंडिंग. नाउ व्हेन ये ए है, बी, सो नाउ व्हेन बी इज पेइंग टू ए, तो वो बोल रहा है आई एम पेइंग ₹25,000 अगेंस्ट इनवॉइस टू, सॉरी कितना है, 5, 10, 15, हाँ, 1, 2, 4 एंड 5.
ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इंडिकेटिंग कि मैं किसके सामने इनवॉइस पे कर रही हूँ। तो जब मैंने बोला है, तो ए जब उसकी बुक में एंट्री करेगा तो वो क्या बोलेगा, पेड, पेड, पेड एंड पेड। ठीक है, सेकंड बोलता है कि वेर द डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। तो जो यहाँ पे मैंने क्रेडिटर है वो खुद डिसाइड कर सकता है कि कौन से करेक्ट, इसके करेक्ट, डिस्चार्ज कर। करेक्ट। सो ही सेड अच्छा तूने 25,000 भरा है, तो आई विल से पेड, एंड इसको भी मैं बोलूंगी पेड। मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर लूंगी कि 25,000 आए तो ये दोनों इनवॉइसेस ने पे कर दिए होंगे, और आई कैन शो एनी अदर इनवॉइस ऑल्सो, करेक्ट। सो आई एम सेइंग दिस इज पेड. Now what happens is that neither have I informed, neither has he appropriated. किसी ने भी नहीं किया है. तो then in that case when I pay 25,000 rupees, it is assumed कि 10,000 इधर का पे किया है, इधर का 15,000 पे किया है, इधर का बैलेंस पे कर दिया है. अंडरस्टूड. सो इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर, जो सबसे पुराना डेट है वो पहले पे हो जाएगा. ठीक है, वेरी सिंपल सेक्शन, इसमें कुछ भी नहीं, इट इज वेरी लॉजिकल. 59, 60, 61, दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू रिमेम्बर कि ऐसा सेक्शन है जहां पे ओके। मतलब 59 में इंडिकेट किया है, 60 में नॉट इंडिकेटेड, एंड 61 में जो ओल्डेस्ट डेट है उसको पहले पेमेंट कर दिया, ऐसे दिखाएंगे. ओके। ठीक है. नाउ contracts which need not be performed with the consent of both parties, again important. Novation, rescission, remission and alteration. क्या बोल रहा है कि नोवेशन, रेसिशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. रेमिशन पहले नहीं आएगा, सेकंड में आएगा. नोवेशन, नोवेशन मतलब क्या, कि मैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ. ओके, सो मेरा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं खत्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ. The parties to contract may substitute a new contract for the old. If they do so, it will be case of novation. On novation, the old contract is discharged and consequently it need not be performed. This can be between the same parties or between different parties. ठीक है. So, for example, what will happen is that बेसिकली पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अभी नए कॉन्ट्रैक्ट में कोई दूसरे पर्सन को भी ऐड कर सकते हैं। so अगर A ने अग्री किया है कि मैं घर पेंट करूंगा विथ B फॉर ₹1,00,000, दिस इज ओरिजिनल, और ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे इसको अभी के लिए. ओके. नाउ इन दिस सेम कॉन्ट्रैक्ट A is saying that I don't pay, so I am going to give this to Asian Paints. Okay, so I make a new contract where I say that A has agreed that Asian Paints will pay this paint this particular house with B ₹1,00,000. तो मैंने खाली नया पार्टी ऐड कर दिया है, ये मेरा बन गया नोवेशन. और I say that A has agreed with B कि ये पेंट करेंगे for ₹1,00,000 प्लस इंटीरियर्स के लिए भी हेल्प करेंगे, उसका ₹50,000. चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो भी ये नोवेशन हो गया. सेम पार्टी होगा या डिफरेंट पार्टी होगा. ऑल्ट्रेशन भी सेम है, लेकिन ऑल्ट्रेशन में क्या है कि पार्टी सेम ही रहेगा, सेम पार्टीज ही रहेगा. एंड यहाँ पे ए और बी के बीच में ऑल्ट्रेशन होगा. ₹1,00,000 किया या ऐड कर दिया कुछ, जो अभी मैंने बोला ₹50,000, वो ऑल्ट्रेशन भी हो सकता है क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर किया. आई हैव नॉट गॉटन टू प्लेस अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, आई हैव जस्ट ऑल्टर्ड द कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हाट इज इट सेइंग इज दैट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म, एक सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म with the consent of both parties. तो मेरा जो old contract है need not be performed with the consent of both the parties. Understood? Then, यस। so this is novation, rescission. Now coming to alteration.
ऑल्ट्रेशन में क्या सॉरी, ऑल्ट्रेशन क्या बोल रही हूँ, रेसिशन। रेसिशन में क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय रेसिशन when the parties agree that the contract need not be performed. So what happened is that I hired a painter, Asian Paints. I told him that I want to paint my classroom, okay, which is on rent. Now, before I did the puja and all of that, and before he could actually come and paint, मेरे इसमें fire लग गया. एंड आई गेव अवे द क्लासरूम. मैंने बोला कि ऐसा मनुष्य क्लासरूम मेरे को रेंट पे चाहिए ही नहीं, तो मैंने क्लासरूम निकाल दिया. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर दैट वी विल बोथ अग्री. मैंने फोन पे उसको बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये वो, बट नाउ वी आर बोथ अग्रीइंग दैट बिकॉज दिस क्लासरूम इटसेल्फ इज नॉट देयर, I don't want to go ahead and do the contract. So parties are mutually agreeing. सब जगह ना यहाँ पे म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है. तो अगर कभी भी ऐसे पूछा कि म्यूचुअल अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, सो यू विल से नोवेशन, ऑल्ट्रेशन और रेसेशन. अंडरस्टूड. तो रिसाइड मतलब खत्म कर दिया. ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है. हाँ. देन आता है रेमिशन. सो देर इज नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसिशन, रेमिशन. रेमिशन में क्या होता है कि जहां पे मुझे किसी इंसान को पैसा भरने का है, A has to pay B, different invoices has to pay, and he has to pay an amount of 5,63,824 rupees. Okay, here A tells B that you pay me full rupees 5,60,000 in full and final settlement. तो ऊपर का छुट्टा माफ कर दिया, रेमिट कर दिया, रेमिशन कर दिया. अंडरस्टूड. Yes. सो जहाँ पे आई एम वेविंग ऑफ द लायबिलिटी, आई एम म्यूचुअली अग्री. मैं भी बोलती ठीक है, उसको तो अच्छा ही है, उसका 3,000 रुपये बच गया करे. सो वी आर म्यूचुअली अग्री टू remit a certain amount, then it is called as a remission. ठीक है. Yes. Now restoration of benefit under a voidable contract, this we have already studied. You will tell me what it is. जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है तब क्या बोलते हैं, जो भी बेनिफिट मिला है वो रिटर्न, रिस्टोर या क्या बोलते हैं, वो रीपे करना होता है ना, तो यही है. Correct. So here if I have to return or repay the amount for a voidable contract, what is my voidable contract? कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस. नहीं, what is a नहीं, voidable contract? If I when say at the option of one party, correct, the more when at the option of one party, the contract is said to be unenforceable, is or is not enforceable. contract is unenforceable at the option of one party but not at the At the option of option of the other other. party. Correct. हाँ. तो मेरा हो जाएगा. और उसमें क्या क्या होता है, फ्री कंसेंट नहीं होता है, फ्री कंसेंट नहीं होता है. और उसके कौन सी बदले तरीके से वो होता है, ये what are the things which are present? Coercion. अच्छा, वैसे कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. अब इसमें मिस्टेक ठीक ऑफ है. एंड कोercion एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन मुझे बोल के दिखा. कोअर्जन, ऐसे committing or threatening to commit any such act forbidden by the Indian Penal Code, or detaining or threatening to detain any such person or property with an intention to enter into a contract करेक्ट. is coercion. एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. Uh, when one person. हाँ. मैं वो पहले पूरा आसा ये कर रही थी, फिर बोलने वाली. हाँ बोल. When one person in the contract is in the position to dominate the will of the other party, and that person uses his
and that person uses the position to dominate the To obtain an to unfair हाँ, advantage, to obtain the unfair advantage then it is called as for undue undue influence. influence. Correct. Now, सो अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वॉइड कर दिया है तो रिस्टोर करना है बेनिफिट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, व्हाट इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी? Valid turn void due to करेक्ट। change तो in वैलिड का वॉइड हो गया, तो अगर वॉइड हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, तो वट एवर बेनिफिट आई हैव रिसीव दैट आई विल हैव टू रीपे। वहां पे अपन ने थर्ड चैप्टर में सेक्शन 19 में पढ़ा था वॉइडेबल का, यहाँ पे 64 में रिस्टोरेशन लिखा है, तो दोनों सेम सिमिलर लाइंस पे है। एंड 65 वाला वॉइड वाला अपन ने वहां पे नहीं पढ़ा था, सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहे। करेक्ट। देन अगर रिसाइंड करना है कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज रेसिशन? cancellation. कैंसिल। तो रिसाइंड करना है तो मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मैं रिसाइंड कर रही हूँ। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन रेसिशन। ठीक है। हाँ, 1 सेकेंड। देन effect of neglect of promise C to afford promiser reasonable facilities for performance। तो अगर कुछ अग्री किया है कि मुझे परफॉर्म करना है, बट इफ यू आर नॉट गिविंग मी रीजनेबल फैसिलिटी टू परफॉर्म, देन इन दैट केस मेरा लायबिलिटी नहीं होगा एंड आई विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम माई लायबिलिटी। ठीक है। सो दीज आर sections which we have already studied under, some of them are already there under chapter 3। only important part in this particular part of the chapter is your म्यूचुअल अग्रीमेंट से कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज होते हैं। तो वो आएगा नोवेशन, न्यू कॉन्ट्रैक्ट novation. बिटवीन सेम पार्टीज और डिफरेंट पार्टी, ऑल्ट्रेशन चेंजिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेम पार्टी, रेसिशन जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड एंड देयर इज नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कमिंग इनटू फोर्स एंड दिस इज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट अगेन, and remission where I am dispensing with or remitting a particular amount of the total sum that is payable, then it is called as remission। communication of rescission is something which is important। अगर कॉन्ट्रैक्ट voidable है और void किया है तो मुझे उसमें रिस्टोर बेनिफिट कर देना है, 64 बोलता है। अगर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट void हुआ है, तो वैलिड टर्म void हुआ है, तो मुझे सारे बेनिफिट्स रिस्टोर करने हैं, वो सेक्शन 65 बोलता है। ठीक है। देन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगेन बहुत सारा किया है। डिस्चार्ज मतलब क्या, कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट है खत्म कर दिया है। फर्स्ट है कि मैंने परफॉर्मेंस कर दिया, मैंने लॉ सिखा दिया, आपने पैसा भर दिया, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट हो गया बाय परफॉर्मेंस। करेक्ट। सो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। सेकेंड आता है बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। म्यूचुअल अग्रीमेंट में कौन सा आएगा? Rescission. नोवेशन, अच्छा, सारे ऑल्ट्रेशन, rescission, रेसिशन, rescission, रेमिशन। तो ये remission. कोई भी वे में म्यूचुअल अग्रीमेंट से मैं कॉन्ट्रैक्ट जो है रिसाइन अरे डिस्चार्ज कर सकती हूँ। करेक्ट। हम्म, देन डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया valid तब turn वैलिड था, void. बाद में सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से इंसान मर गया, इंसान जो नाचने वाला था पैर फ्रैक्चर हो गया है, नहीं डांस कर सकता इवेंट में, और बिटकॉइन वाला जो एग्जांपल दिया था चेंज इन लॉ की वजह से, सो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच इज नाउ टर्न वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देन डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, जो टाइम में परफॉर्म करना था वो टाइम खत्म हो गया है, लिमिटेशन एक्ट बार कर दिया है, तो नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। अगर वो केस नहीं फाइल किया है, मतलब परफॉर्म नहीं हाँ, किया है, तो समझा. केस फाइल करना है, वो भी नहीं किया है, तो तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया। एंड डेटर क्रेडिटर में अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इफ अ क्रेडिटर डज नॉट फाइल अ सूट फॉर बाय फॉर रिकवरी ऑफ पाइस विद इन 3 years, the debt becomes time barred and hence irrevocable। करेक्ट, ये अपन ने पढ़ा था टाइम बार्ड डेट। देन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर लॉ कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं कर पाती हूँ, या अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या किसी का डेथ हो जाता है, देन इन दैट केस इट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ। देन डिस्चार्ज, नीचे आ जा, पहले ऊपर का बाद में करेंगे, नहीं सॉरी ये भी कर ले। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो प्रॉमिस किया था
कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने का, दैट यू हैव नॉट परफॉर्म. सो यू पेड मी मनी बट आई डिडंट टीच यू. हाँ. यू केप फॉलोइंग अप बट आई डिडंट टीच यू. एग्जाम आके चला गया लेकिन मैंने सिखाया नहीं. तो यहाँ पे क्या हो गया? डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे मैंने एक एक्चुअल ब्रीच किया है. दैट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड होता है मेरा एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे यू कॉलिंग मी, आई एम नॉट टेकिंग. यू एंटिसिपेट दैट आई एम गोइंग टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट. देखो हाँ. लग रहा है ये पैसा लेके बैठ गई, ये सिखाने नहीं वाली है. एक्चुअली आई वॉज सपोज टू टीच यू, आई वॉन्ट टू टीच यू, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज एट होम आई एम नॉट एबल टू टीच यू. So that is anticipatory breach of contract, which is again something which we study in the next chapter. So we will just read it here also, so that एक खत्म हो जाए. When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirely, the promisee may put an end to the contract unless he has signifies by word or conduct his acquiescence in its continuance. मतलब क्या कि either you can say that I want to put an end, to पैसा दे दे मेरे को and I don't want you to teach me, मैं किधर और classes कर लेगी. That is one. Or by words you have, or by your conduct, you are showing me that you are waiting for my performance. Even if पूरा जुलाई आके चला गया, मैंने पढ़ाया नहीं है, you are still waiting for me कि ये अगस्त में आके पढ़ाएगी, then that is also in anticipatory breach. Either you can end the contract or you can wait for performance. Actual breach मतलब तो हो गया, एग्जाम हो गया, मैंने पढ़ाया नहीं, तो actual breach हो गया. ठीक है. हम्म. इसमें कुछ और है? करेक्ट. सो दैट इज योर एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच. ठीक है. देन Yes. प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस. ये रेमिट परफॉर्मेंस इज सेम एज रेमिशन. Mission. तो ये म्यूचुअल से भी होता है, खाली रेमिशन भी होता है, जहां पे मैं तेरे पास से एक लमसम अमाउंट लेके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देती हूँ. ठीक है. देन अगर मेरे को रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस नहीं दिया, मैं आई लेकिन तू अटेंड करने को ही नहीं आई, रीजनेबल फैसिलिटी नहीं दिया, तो मेरे एंड से डिस्चार्ज हो गया, मेरे को अभी कोई लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज मैंने ऑफर टू परफॉर्म कर दिया है. एंड आता है मर्जर ऑफ राइट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मर्जर ऑफ राइट्स क्या बोलता है? इसमें इंफीरियर राइट्स होता है एंड सुपीरियर राइट्स होता है, जो को इंसाइड करता है. मतलब क्या कि मैं एक घर में रह रही हूँ, दिस हाउस इज ऑन रेंट. Hmm. Okay. Now this house is on rent. I am paying rent every month Hmm. to the landlord. ठीक है. नाउ मुझे ये घर अच्छा लग गया, मैं ये घर में 5 साल से रह रही हूँ, तो आई टोल्ड बी दैट आई एम गोइंग टू buy the house. So he said, okay, you can buy the house for rupees 3.5 crores. मैंने बोला okay, no problem, I will pay 3.5 crores. So I paid 3.5 crores to him and I bought the house. So now what has happened is कि ये मेरा inferior right है, मैं tenant हूँ, correct? ये मेरा superior right है. तो because I have bought the house, now I am the owner. So do I have to pay the rent to him? No. No, it is logical. बट इसको बोलते हैं मर्जर ऑफ राइट्स. तो मेरा इंफीरियर और सुपीरियर राइट्स मर्ज हो गया है, मैं ही टेनेंट, मैं ही ओनर, तो मेरे राइट्स मर्ज हो गए, जिसकी वजह से आई डोंट हैव टू पे द रेंट नाउ. ठीक है. Hmm. ये एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल के साथ ये बुक में है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम छोटू सा पार्ट है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड एज अ केस स्टडी क्वेश्चन. ठीक है. एनी डाउट्स एनीवेयर? No. नहीं. ठीक है. नाउ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपन ने देखा कैन बी ड्यू टू एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ड्यू टू एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. करेक्ट. नाउ अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो अपन ने स्टार्टिंग से इफ आई सी what did I see? I saw what is a valid offer, what is valid acceptance. Then I came to what is a valid contract. Valid contract मेरे पास आ गया, फिर मैंने चेक किया कि मेरा कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, मेरे ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, मेरा फ्री कंसेंट होना चाहिए, क्या क्या होगा तभी फ्री कंसेंट नहीं है, व्हाट आर द सिचुएशंस वेर इट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, वो सारे मेरे टर्म्स देखे. देन आई केम टू परफॉर्मेंस. मैंने एक बार मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो मैंने परफॉर्मेंस किया. परफॉर्मेंस में मैंने क्या देखा कि दोनों पार्टी ने प्रॉमिस परफॉर्म किया है नहीं
प्रॉमिस परफॉर्म किया है, ऑर्डर क्या है, कौन पहले परफॉर्म करने वाला था, कौन बाद में, कभी कहाँ परफॉर्म करना है, ऑल ऑफ दैट आई सी देयर। करेक्ट। देन परफॉर्मेंस हो गया। अगर परफॉर्मेंस नहीं होता है जब होना चाहिए था, तो मेरा ब्रीच होता है। नाउ दिस ब्रीच कैन बी एक्चुअल ब्रीच, जहां पे करना था नहीं परफॉर्म किया, एक्चुअल ब्रीच हो गया। सेकेंड इज एंटिसिपेटरी ब्रीच, जहां पे मुझे लग रहा है कि जब भी परफॉर्मेंस आएगा तब ये परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है। व्हाट आर द टू ऑप्शंस आई हैव? cancel the cancel the करेक्ट। contract and और wait for the promise परफॉर्मेंस। हाँ to करेक्ट। सो perform the वेट contract. फॉर परफॉर्मेंस और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों ऑप्शंस मेरे पास है। नाउ अगर ब्रीच हो जाता है, कर दिया, ब्रीच हो गया, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शंस है? फर्स्ट वो बोलता है कि सूट फॉर डैमेजेस, मेरे को जो भी डैमेजेस है, दोज डैमेजेस यू विल हैव टू पे मी, दैट इज माय वट एवर रेमेडी दैट इज अवेलेबल टू मी। करेक्ट। यहाँ पे Yes. क्या होता है कि मैंने ए हूं मैंने बी को बोला था कि 100 बेल्स ऑफ कॉटन एट ₹55 पर 50 पर बेल मैं तेरे पास से लेगी। ठीक है। यू विल हैव टू गिव दिस टू मी आफ्टर 3 months ऑन 1 October 2026। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट हियर, अगर वो 1 October 2026 को मुझे नहीं देता है, तो मेरा एक्चुअल ब्रीच हो गया। अगर वो 1 October के पहले मुझे बोलता है कि मेरा फायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आई एक्सपेक्ट कि वो नहीं देगा बिफोर, तो ये मेरा क्या हो गया? Anticipate breach. एंटिसिपेटरी ब्रीच। नाउ he didn't give it to me, actual breach कर दिया on 1 October 2026 when he had to give me the cotton, he didn't give it to me. So what happened, I had to go in market and I had to get it at ₹60 per bale। correct। 60 पर बेल पे मैं लेके आई। ये मेरा डिले हो गया क्योंकि मार्केट में गई, ढूंढा, ये वो। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें ये कॉटन मुझे यूज करके गवर्नमेंट को कुछ देने का था। गवर्नमेंट ने मुझे बोला था दैट इफ यू डोंट गिव दिस टू मी ऑन टाइम देन आई विल चार्ज यू ₹20,000 ऑफ पेनल्टी। ओके। नाउ यहाँ पे मेरा ये जो कॉटन है, बिकॉज वो 1 October आने वाला था, उसने एक्चुअल ब्रीच किया, मुझे वो नहीं आया, मुझे मार्केट में ढूंढने जाना पड़ा, मेरा 5-10 दिन जो भी डिले हुआ, फिर मुझे 60 के रेट पे मिला, तो मेरा 50 का 60 तो हो ही गया। प्रॉफिट का मेरा थोड़ा कम और प्रॉफिट हो वो गया। करेक्ट। 20 भी हुआ. बट मुझे ₹20,000 का भी पेनल्टी पड़ना। So now when I'm recovering damages from him, will I recover 60 minus 50 into the number of bales of cotton plus 20,000 or without 20,000? 20,000 only if he knows कि गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा कुछ था. Correct, अगर नहीं correct, पता है तो नहीं करेंगे, अगर पता है correct. तो So if I've 20,000 लगेंगे. communicated this, correct? सॉरी, इग्नोर, कम्युनिकेटेड है ये, तो फिर रिकवर कर सकती हूँ। अदरवाइज खाली मैं 60 माइनस 50 इंटू नंबर ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन जो मैंने लिया है, उसका जो है दिस मच आई कैन टेक एज डैमेजेस प्लस इनकन्वीनियंस कॉस्ट, मेंटल हैरेसमेंट, जो भी है दैट आई कैन टेक फ्रॉम हिम। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे व्हेन आई एम डूइंग, इट इज सेइंग जनरल ऑर्डिनरी डैमेजेस। जनरल ऑर्डिनरी डैमेजेस मतलब जो कॉम्पेंसेशन फॉर एक्चुअल लॉस जो मेरा हुआ है, जो मैंने तुझे कम्युनिकेट किया था। व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ स्पेशल डैमेजेस, receives a notice of special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for the damages arising naturally वो and directly but also for the special damages। 20,000. करेक्ट। तो यहाँ पे अगर कम्युनिकेट किया है तो ये मेरा जनरल है, बट ये मेरा स्पेशल है। बट ये कम्युनिकेशन होना चाहिए, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो दिस इज नॉट समथिंग आई कैन रिकवर। देन विंडिक्टिव एग्जेम्पलरी डैमेजेस, वो क्या होता है
जहाँ पे इंजरी टू फीलिंग या रेपुटेशन होता है, जहाँ पे अगर सपोज मैंने चेक दिया है, मैंने बोला था मुकेश अंबानी ने 10,000 का वो चेक दिया, बाउंस कर दिया बैंक ने, तो वो 138 नेगोशिएबल के अंदर तो एक्शन लेगा कि भाई तूने मेरा चेक बाउंस कर दिया, बट ऑल्सो यहाँ पे आई कैन से विंडिक्टिव डैमेजेस, मेरा रेपुटेशन तूने खराब कर दिया बाय सेइंग कि ये पैसा मैं नहीं दे पा रहा हूँ, करेक्ट। देन आता है नॉमिनल डैमेजेस। यहाँ पे क्या होता है कि हर बार ना डैम लॉस जरूरी नहीं है। इन द सेम एग्जाम्पल, अगर मैं मार्केट में गई एंड इन द मार्केट आई गॉट इट फॉर रुपीज 50 ओनली, तो मेरा कुछ लॉस हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। बिकॉज 50 में मुझे मिलने वाला था 3 महीने पहले के कॉन्ट्रैक्ट में, बाद में भी 50 पे ही मिला है, तो मेरा लॉस नहीं हुआ है, बट मुझे गुस्सा आया, हाउ डेयर यू नॉट गिव मी द गुड्स, करेक्ट। तो इसके लिए मैंने उसके ऊपर केस किया है। तो कोर्ट बोलता है कि तू इतना मेहनत करके केस करके इधर आई है, देखो लॉस नहीं हुआ है, बट बिकॉज यू कम हियर एंड यू नो यू आर राइट कि उसको तेको देना चाहिए था, देन इन दैट केस आई विल गिव यू नॉमिनल डैमेजेस। इट कैन बी ₹1 और इवन 10 पैसे, खाली तेरे को खुश करने के लिए कि भाई तू विनर है, तू जीत गया, you are right. Understood? So that is nominal damages. Then damages for deterioration caused by delay. तो यहाँ पे अगर कोई भी डिले होता है जिसकी वजह से डिटीरियोरेशन होता है, दिस में नॉट नेसेसरीली बी कि मेरा पेरिशेबल गुड्स हो, इवन फॉर अदर गुड्स, करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, आयन के लिए रस्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब जैसे पेरिशेबल गुड्स होगा तो ठीक है, अभी सब्जी बेच रही है और तू बोला लेके जाएगा, तू नहीं लेके गया, टमाटर सड़ गया तो पेरिशेबल हो गया, तो डिटीरियोरेशन कॉज टू डिले डैमेजेस आई कैन क्लेम। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, से फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू दैट आई विल सेल माय कार टू यू फॉर ₹2 lakhs, ओके। नाउ आफ्टर आई टोल्ड यू, इमीडिएटली हाफ एन आवर के बाद मुझे कॉल आया कि आई एम रेडी टू बाय द कार फॉर ₹3 lakhs। अभी आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैं तेरे को 2 लाख में देने वाली, अभी मेरे को 1 लाख ज्यादा भी मिल रहा है, बट आई एम नॉट टेकिंग इट बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम गिविंग यू द कार, आई वांट टू कीप माय वर्ड। तो इसके लिए मैंने तेरे को बोला कि तू ही ले 2 लाख में, मैं ये 3 lakhs वाला ऑफर नहीं ले रही हूँ। नाउ टुमारो यू डोंट कम, यू डोंट टेक द कार, यू डोंट पे मी 2 lakhs, तू तो नहीं आई, 2 लाख तो गया, ये भी अभी तीन बोलेगा लाख अभी भी मैंने गया। किधर और से ले लिया, करेक्ट, तो मेरा ये भी गया। तो यहाँ पे लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी is also something that is covered. Understood? So यस। deterioration caused by delay, yes, perishable goods है तो of course. बट अगर वो ऐसा कोई गुड है जहां पे पेरिशेबल नहीं है, कार इज नॉट पेरिशेबल, लेकिन ड्यू टू लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर मेरे को कोई डैमेज होता है तो दैट ऑल्सो आई विल क्लेम अंडर डिटेरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले। अंडरस्टूड। एंड लास्ट वाला है जो बहुत बार थ्योरी क्वेश्चन में पूछा है, एंड दैट इज माय प्रीफिक्स्ड डैमेज। मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में पहले से बोला है कि मेरा इतना लॉस होगा तो इतना डैमेज मैं लूंगी, सो आई एम साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज हाउ जनरली पीपल डू इट, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ यू डोंट सप्लाई द गुड्स ऑन सो एंड सो डेट यू विल हैव टू पे ₹50,000 एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे पार्टीज ने पहले से अग्री किया है। यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है पेनल्टी, एक होता है लिक्विडेटेड डैमेज। व्हाट इज द डिफरेंस? पेनल्टी इज अ वेरी हाई अमाउंट। करेक्ट। सो पेनल्टी जो है ना वो एडहॉक है। एडहॉक समझ में आता है? ऐसे रैंडम नंबर दे दिया, 50,000, 1 लाख। इट इज टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट, तो तेरे को खाली डराने के लिए है। जैसे व्हेन यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट जनरली, सीए का प्लेसमेंट से अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कोई कंपनी के साथ में कैंपस प्लेसमेंट में, तो वहां पे एक क्लॉज होगा कि इफ यू डोंट टर्न अप तो ₹20,000 यू हैव टू पे। नाउ दिस इज अ पेनल्टी, इट इज ओनली टू स्केयर यू, बिकॉज उसको पता है कि एक बार तू मेरे पास इंटरव्यू देके गई, मैंने तुझे ऑफर लेटर दिया, कैंपस चलने वाला है 5 दिन तक, नेक्स्ट 4 days में यू मे गेट अ बेटर ऑफर एंड यू मे नॉट वांट टू कम एंड वर्क विथ मी। इन दैट केस अगर तू नहीं आती है तो मेरा तो अपॉर्चुनिटी गया, इन दैट केस यू विल हैव टू पे 20,000, सो इट इज मोर टू स्केयर यू। द अमाउंट इज नॉट कैलकुलेटेड लायबिलिटी, एक एडहॉक अमाउंट दे दिया है कि चल इतना तेको पे करना है।
लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो कैलकुलेटेड पेनल्टी होता है। तो मैं सोचूंगी कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, अगर मैं मार्केट में 3 महीने के बाद लेने जाऊंगा तो मुझे उसका अराउंड 35,000 एक्स्ट्रा लॉस होएगा, प्लस मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिले होएगा उसका 20,000 रुपये होएगा, प्लस मेरा जो पेपर वर्क ये वो जो है उसका अलग से 20,000 रुपये होएगा। एंड देन आई टेल यू 75,000 इज द अमाउंट दैट इज पेबल। दिस इज अ लिक्विडेटेड डैमेज। इंडिया में पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, सो वी यूज ओनली वन वर्ड, वेदर यू हैव कैलकुलेटेड नॉट कैलकुलेटेड, इट्स अ प्रीफिक्स डैमेज जो मेरे अग्रीमेंट में आ रहा है। अगर मैंने मेरे अग्रीमेंट में अमाउंट डाल दिया है, the court will never give you anything higher than above 50,000. that amount, हाँ. 50 भी नहीं मिलता है, it is always lower than 50,000. Understood? So you will not get anything higher. This is a prefix damage. So कौन से टाइप के डैमेज है एक बार रिवाइज करवा दे। Suits for damage. सॉरी। uh, Suits for damage में general, special, vindictive, हम्म nominal, विंडिक्टिव में क्या होता है? लॉस ऑफ law. रेपुटेशन। नॉमिनल में जहाँ पे एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, खाली खुश हाँ, करने के लिए। हाँ. करेक्ट। And damages due to deterioration by delay and करेक्ट, यहाँ prefix पे अपन damages. जो पेरिशेबल गुड्स है वो तो है ही, बट उसके Then अलावा और क्या है? लॉस ऑफ। loss of sale of opportunity. करेक्ट, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो Yes, कवर्ड। it's एंड covered. प्रीफिक्स डैमेज, प्रीफिक्स डैमेज में अपने पास पेनल्टी होता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। पेनल्टी इज एड ऑफ अमाउंट जस्ट टू स्केर यू। लिक्विडेटेड डैमेज इज कैलकुलेटेड Calculated. अमाउंट। इंडिया में बिटवीन द टू देयर इज नो डिफरेंस, इंग्लिश लॉ में दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। कोर्ट विल नेवर गिव यू एनी अमाउंट विच इज हायर देन व्हाट इज मेंशन्ड इन योर प्रीफिक्स डैमेज। करेक्ट। Yes. नाउ नेक्स्ट आता है, तो ये मेरा सूट फॉर डैमेजेस हो गया। नेक्स्ट आता है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन क्या होता है? Cancellation of contract. कैंसिलेशन। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया, मैंने बोला अभी मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट तेरे साथ करने का ही नहीं है, तो रेसिशन हो गया। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? कि आप परफॉर्म करो, like करेक्ट, सो आई एम you सेइंग मेरे ask को for the डैमेज नहीं performance. चाहिए बट आई वांट यू टू परफॉर्म, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? So for specific स्पेसिफिक performance. परफॉर्मेंस। सूट फॉर इंजंक्शन क्या होता है? यहाँ पे मैं किसी को बोलती हूँ तुझे ये नहीं करना है। शाहरुख खान ने करण जौहर के साथ फिल्म साइन किया। करण जौहर ने बोला कि ये फिल्म करने के टाइम यू विल नॉट वर्क विथ एनी अदर पर्सन। शाहरुख खान तो भी गया किसी और के साथ काम किया। तो करण जौहर विल गो टू द कोर्ट एंड ही विल से प्लीज पास एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन that he can not do this, मेरे को हाँ. डैमेज नहीं चाहिए बट टेल हिम नॉट टू डू दिस। सो वेयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट टेल्स यू तेरे को ये करना ही है। इंजंक्शन इज द ऑपोजिट, इट इज सेइंग, इट इज मत टेलिंग यू तुझे करो, ये नहीं नहीं करना है। करना है, हाँ वही. करेक्ट, सो दैट हाँ. इज उल्टा, दैट इज कॉल्ड एज इंजंक्शन। Injunction. देन कमिंग टू क्वांटम मेरिट, अगेन क्वांटम It मेरिट इज is important it as is much as जितना. the party हाँ. as doing service deserves। करेक्ट। तो ये क्या Yes. बोलता है कि जितना काम तूने किया है उसका तो पैसा तुझे मिलना ही चाहिए। डैमेजेस आर कॉम्पेंसेटरी व्हाइल क्वांटम मेरिट इज रेस्टिट्यूटरी। ऐसा करके कमेंट, ऐसा करके क्वेश्चन भी आ सकता है। सो हियर आई हैव गिवन अ एग्जांपल which you can remember, it's there in the book so you don't have to write it down। क्या बोलता है ये कि मैंने एशियन पेंट्स को बुलाया, मैंने उसको बोला यू हैव टू पेंट 5 रूम्स, सेट 10,000 rupees per room which is coming to 50,000 rupees। he came, he painted 2 rooms and वो हो गया गुल। तो वो जब आया तब मैंने किसी और के पास से करवा लिया क्योंकि वो 6 महीने के बाद वापस आया, तो मैंने किसी और के पास से करवा लिया था। he said you pay me 20,000 for what I've done। I said I will not pay you। he takes me to the court of law। court of law will tell me since he has done his work for 2 rooms तो you दो have कर to सकता pay है. him for that particular
अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर रूम, करेक्ट। तो जितना काम किया है उसके लिए उसको मुझे पैसा देना ही है, उसको वॉट एवर ही इज परफॉर्म, उसके लिए जो डिजर्व करता है दैट अमाउंट आई हैव टू पे हिम। समझ में आया? दैट इज Yes. क्वांटम मेरिट। Party rightfully rescinding the contract is entitled to compensation for any damage, which is okay. ठीक है, समझ में आया? सो यहाँ पे अपने ये Yes. चैप्टर में सिंपल है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या हो सकता है? सूट फॉर, Act. अच्छा. Suit for damages, suit for injunction, suit for specific performance, suit for quantum merit, or रेसिशन ऑफ suit कॉन्ट्रैक्ट। for rescission of contract. When I talk about damages, what are हाँ. the things which are covered? General, special, vindictive, nominal, cause नहीं, एक सेकंड. Deterioration due to delay. करेक्ट, फिर फिक्स प्रीफिक्स डैमेजेस, उसमें आता है पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस. करेक्ट। इंडियन पेनल्टी लॉ डिफरेंशिएट करता है? नहीं. नहीं करता है। देन सूट फॉर रेसिशन में रिसाइन कर दूंगी कॉन्ट्रैक्ट। देन स्पेशल परफॉर्मेंस में You'll ask for the performance of the contract. एंड Injunction में we'll ask not to do a specific thing. करेक्ट, एंड क्वांटम मेरिट जितना पार्टी ने किया है उतने के लिए उसको ऐसा मिलना चाहिए। पैसा मिलना चाहिए. हाँ. करेक्ट करेक्ट, समझ में हाँ. आया? सो यहाँ पे यस. अपना फर्स्ट 6 यूनिट्स पूरे खत्म हो गए। एनी डाउट? सिक्स लास्ट कंटिंजेंट वाला हमने अपन किया ने किया है, है पता है मुझे. ऑलरेडी, हाँ. हाँ. करेक्ट। तो ये कुछ भी डाउट, कोई भी पार्ट जो नहीं समझा है, रिपीट करना नहीं है? नहीं. नहीं, ठीक है।